What do you know about this word? Have you ever listened this word before? क्या आपने कभी word regdi सुना है? Have you ever listened about it? If you haven't, you can find it out on the Google Chrome. Google, you can Google it or you can find it out in the dictionary. Rag. What is the meaning of rag? Rag means the loose cloth, the loose sheet of cloth, the waste cloth. ऐसा कपड़ा जो एक्स्ट्रा हो, छोटा सा हो, टुकड़ों में हो, स्मॉल पीसेस ऑफ क्लॉथ, ऐसी चीज़ जिसको हम रीयूज़ नहीं करते हो, दैट्स कॉल्ड रैग. So today we are going to read the Raggedy-Ann. You can see the picture of Raggedy-Ann. It's the name of a doll. Raggedy-Ann is the name of the doll, and story is all about the Raggedy-Ann and the kite. Let us start the reading comprehension. But before starting the reading comprehension, first we have to read the passage. First we have to read the passage. On page number 92, you can see the name of the chapter like this, and you can see a paragraph. It's the first paragraph of your chapter, Raggedy-Ann and the Kite. Raggedy-Ann is a rag doll owned owned by a girl called Marcella. आप मेरा पैसेज गौर से सुनेंगे तो ही आप मेरे क्वेश्चंस के आंसर्स कर सकते हैं, वरना आप मेरे क्वेश्चंस के आंसर्स अटेम्प्ट नहीं कर सकते. ठीक है. बहुत से पेरेंट्स की कंप्लेन ये है कि हमें आंसर्स नहीं मिलते. ये क्वेश्चन कहाँ से आया है, इसका आंसर कहाँ है, हमें कुछ नहीं पता. बाद में जब आप लोग मुझे पर्सनल नंबर पे मैसेजेस करते हैं और कॉल्स करते हैं और समझ नहीं आता, तो उससे बेहतर ये है कि आप मेरी वीडियो अच्छे से सुने. Raggedy-Ann is a rag doll owned by a girl called Marcella. One day in the park, Raggedy watched a group of children working busily. I read this paragraph again for you so you can understand it clearly. Raggedy-Ann is a rag doll. कपड़े से बनी हुई, कुछ छोटे छोटे स्मॉल पीसेस से बनी हुई एक ऐसी डॉल. आपने क्या कभी कपड़े की डॉल देखी है? बिल्कुल वैसे ही. Raggedy-Ann is a rag doll owned by a girl. Owned means I own this car, I own the building. Own मतलब आपके नाम पे किसी प्रॉपर्टी का होना, किसी चीज़ का होना. By a girl called Marcella. One day in the park, Raggedy watched a group of children working busily. They tied some sticks. They tied some sticks together with a string and covered the frame with light cloth. While they worked, they talked about the kite. While they worked, they talked about the kite. So, Raggedy-Ann knew this must be a kite. So, Raggedy-Ann knew this must be a kite. Now, you have read two passages from this chapter, Raggedy-Ann and the Kite. And now you are going to answer me of my questions. कुछ questions मैंने आपके लिए बनाए हैं जो असाइनमेंट से हट के हैं. ये आपका असाइनमेंट नहीं है. आपको असाइनमेंट आपके स्कूल से मिलेगा. ठीक है. आपको ये रीड करना है अच्छे से और मेरे साथ क्वेश्चंस के आंसर्स देना सीखना है. ठीक है. Who was Raggedy-Ann? Are you able to give me the answer?
आप मुझे आंसर दे सकते हैं। रैगडी-एन कौन था, कौन थी, क्या चीज़ थी? लेट अस रीड द पैसेज टू फाइंड द आंसर। Who was Raggedy-Ann? Raggedy-Ann is our rag doll. Who was Raggedy-Ann? Raggedy-Ann is our rag doll. So this is the answer. Now, the next question. Question 2. What did the Raggedy watched in the park? What did the Raggedy watch in the park? Raggedy ने पार्क में क्या देखा था? अभी मैंने आपको सुनाया था ना पैसेज, क्या आपको समझ में आया? One day in the park, Raggedy watched a group of children walking busily. What did Raggedy watch in the park? Raggedy ने क्या देखा था? Raggedy watched a group of children walking busily. क्या आपको आंसर्स मिल रहे हैं मेरे साथ? आप देखें, ये रहा इसका आंसर. Raggedy watched. What did the Raggedy watch? The Raggedy watched a group of children working busily. ठीक है? Raggedy watched a group of children working busily. This is the answer. Who was Raggedy-Ann? Raggedy-Ann. Raggedy-Ann is a rag doll. आपको समझ में आ रहे हैं? अगर आपके पास पैसेज से इस तरह आंसर्स फाइंड आउट करने के लिए आएंगे कि आप फाइंड आउट कर सकते हैं. That's good. Now the question number 3. How the kite was made? How the kite was made? क्या पैराग्राफ में आपको इसका आंसर मिल सकता है? Let us read again. How was the kite made? क्या यहाँ पे किसी काइट का जिक्र हो रहा है? Yes. They tied some sticks together with a string. String क्या चीज़ होती है? कोई धागा, कोई रस्सी, कोई सुतली, कोई ऐसी चीज़ जिससे हम उसको बांधते हैं. And covered the frame with light cloth. How they made the kite? They tied some sticks together with the strings and covered the frame with light cloth. While they worked, they talked about the kite. क्या हम पूरा आंसर लिखेंगे? No. This is the answer. The kite was made by the children. They tied some sticks together with the strings and covered the frame with light cloth. How was the kite made? Children tied some sticks together with strings and covered the frame with light cloth. ठीक है, यहाँ पे एक ऐसा क्वेश्चन भी हो सकता था. What were the children talked about? What were the children talking about? या what did the children talk about? The children, अब आप यहाँ पे आंसर फाइंड आउट करें इस क्वेश्चन का. What the children talked about? What the children talked about? बताएं इसका आंसर क्या होगा? आप ढूंढ सकते हैं. वेरी गुड. द चिल्ड्रन, दे की जगह हम क्या कर देंगे? द चिल्ड्रन टॉक्ड अबाउट द काइट. द चिल्ड्रन टॉक्ड अबाउट द काइट. द चिल्ड्रन टॉक्ड अबाउट द काइट. कितना आसान था? आसान है, नहीं है? अब आप जब पैराग्राफ को अच्छे से रीड करेंगे तो आप हर क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं. फिर आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा. ठीक है. Now, next paragraph. This is the third paragraph of your chapter, Raggedy-Ann and the Kite. Listen again. अब इसमें से क्वेश्चंस पूछूंगी मैं, ठीक है? Once they had fastened a tail to the kite and tied a large ball of twine to the front. One of the boy held it up in the air and another boy walked off, unwinding the ball of twine. Once they had fastened a tail. Once they had fastened a tail. Fasten कहते हैं कस के बांधना, किसी चीज़ को बांध देना. ठीक है.
किसी चीज़ को नॉट लगा देना, किसी चीज़ को ज़ोर से बांधना। फास्टन द टेल टू द काइट, जब उन्होंने उसकी टेल भी लगा दी। काइट की एक टेल होती है ना, अब जिसको समझ नहीं आ रहा उसको तो बना के दिखानी पड़ेगी भाई। देखें काइट कैसी होती है, दिस इज काइट। अब यहाँ पे काइट की एक टेल भी तो होती है। वंस दे हैड, ये टेल है ना काइट की। फास्टन द टेल, जब उन्होंने उसकी टेल भी लगा दी काइट की। एंड टाइड अ लार्ज बॉल ऑफ ट्विन टू द फ्रंट, और उसके जो सामने की जगह होती है तो यहाँ पे क्या लगाते हैं हम, एक डोरी, एक रस्सी, एक धागा बांधते हैं जिससे वो उड़ती है। तो उन्होंने उसको भी बॉल ऑफ ट्विन, आपने कभी देखा होगा एक ऐसे 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 करके धागे की एक बॉल होती है या ऊन की बॉल होती है या वुल की बॉल होती है, तो उसको बॉल ऑफ ट्विन कहते हैं, जो गोल गोल घूमी हुई होती है। ठीक है, टू द फ्रंट, वन ऑफ द बॉय हेल्ड इट अप इन द एयर। जब हम पतंग उड़ाना सीख रहे होते हैं तो आप देख रहे होते हैं कोई उड़ा रहा होता है, अगर हम उसे देखें तो एक बच्चा होता है वो दोनों हाथों से पतंग को हवा में लिए खड़ा होता है और दूसरा बच्चा दूर से उसकी रस्सी को टॉइन में बांधे खड़ा होता है। बिल्कुल उन्होंने वही बात की है। आप देखें, वन ऑफ द बॉय हेल्ड इट अप इन द एयर, कहाँ लिए खड़ा था वो, हेल्ड इट अप इन द एयर, एंड अनदर बॉय वॉकड ऑफ, और जो दूसरा लड़का था जिसके हाथ में ट्विन था, अनवाइंडिंग द बॉल, खोलते जाना, अनवाइंड खोलते जाना, अनवाइंडिंग खोलते जाना द बॉल ऑफ ट्विन। रस्सी को छोड़ेंगे तो पतंग उड़ेगी ना। अगर आपने कभी पतंग उड़ाई हो या किसी को उड़ाते देखा हो तो आपको मेरी बात समझ आ जाएगी कि जब पतंग उड़ाते हैं तो हम डोर को ढीला छोड़ते हैं। जब डोर को ढीला छोड़ेंगे, अनवाइंडिंग द बॉल ऑफ ट्विन, अनवाइंडिंग द बॉल ऑफ ट्विन, तो ही हमारी पतंग उड़ेगी। जब डोर को कस के पकड़ के रखेंगे तो पतंग कैसे उड़ेगी। ठीक है, समझ आई। देयर वॉज अ नाइस ब्रीज ब्लोइंग, पतंग उड़ाने के लिए सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ क्या है, नाइस ब्रीज, नाइस breeze. So the boy with the twin called, let her go. So the boy with the twin called, let her go, and started running. अब जिसके हाथ में ट्विन थी उस लड़के ने इशारे से कहा कि इसको जाने दो, इसको हवा में छोड़ दो, इतनी अच्छी हवा चल रही है। एंड स्टार्टेड रनिंग, और ख़ुद जैसे ही उसने दूसरे लड़के ने पतंग छोड़ी उसने भागना शुरू कर दिया। Marcella and Raggedy watched the kite sail through the air. Marcella and Raggedy watched the kite sail through the air. अब उस पतंग को दूर तक जाते हुए कौन कौन देखने लगा, वहाँ बैठी हुई मार्सला, वो लड़की जिसकी वो डॉल थी, और रैगडी डॉल भी उसको पतंग को दूर जाते हुए देख रही थी। It soared up, but suddenly the kite acted strangely. It soared up मतलब उड़ती गई, खूब जोर 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 शोर से उड़ रही थी वो। But suddenly the kite acted strangely. It began darting to and fro. लेकिन क्या हुआ, एकदम से, सडनली, एकदम से काइट अजीब तरीके से एक्ट करने लगी, स्ट्रेंजली एक्ट करने लगी। अभी तो वो बहुत अच्छी ब्लो हवा, जो ब्रीज थी, नाइस ब्रीज थी, उसके अंदर बड़ी अच्छी ब्लो कर रही थी, वो उड़ रही थी। अब वो अजीब से होने लगी, टू एंड फ्रो। इट बिगन डार्टिंग टू एंड फ्रो, थोड़ा ऊपर जाए, थोड़ा नीचे आए, थोड़ा ऊपर जाए, एंड फाइनली मेकिंग 4 and 5 लूप्स, लूप द लूप्स। और उसने आखिर में क्या किया, लूप्स बनाना, गोल गोल घूमना। जैसे आपने अगर पतंग उड़ाई हो तो आपको पता होगा कि लूप्स कैसे बनाती है पतंग। अब ये पतंग है, अब वो लूप्स कैसे बनाएगी, ऐसे 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 गोल गोल घूमने लगती है ना पतंग अपनी जगह पे। इट क्रैश्ड टू द ग्राउंड, और अब क्या हुआ कि वो क्रैश होके कहाँ पे गिर गई, ज़मीन पे गिर गई। ओह, इतनी मेहनत से पतंग बनाई हुई उन्होंने, उड़ाई, हवा में भी उड़ गई, और फाइनली वो आखिर में क्रैश होके ज़मीन पे आ गई। नाउ इट्स द क्वेश्चन टाइम। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा और आप जल्दी से उसका आंसर देंगे। हु वॉच्ड द काइट सेल थ्रू द एयर, हु वॉच्ड द काइट सेल थ्रू द एयर, बताइए। आपको मिला आंसर, वेरी गुड। Marcella and Rexy
watched the kite sail through the air. Marcel and Reggie watched the kite sail through the air. Next question. What was the boy with the twin called? What was the boy with the twin called? जिसके हाथ में धागा था, गोल बॉल थी धागे की, उसने क्या कहा? There was a nice breeze blowing. So the boy with the twin called, let her go. What did the boy with the twin called? The boy with the twin called, let her go. अच्छा, जब आप आंसर लिखेंगे ना, तो जिस तरह इसमें आपको कॉलन नज़र आ रहा है, जिस तरह इन्वर्टेड कॉमास नज़र आ रहे हैं, कॉमा नज़र आ रहा है, बिल्कुल एज इट इज़ आपने लिखना है, ठीक है? आप चेंज नहीं करेंगे इसको, याद रखिएगा। लेट हर गो, जैसे इन्होंने लिखा है आपने एज इट इज़ लिखना है इसको, ठीक है? मस्ट रिमेंबर। एंड द लास्ट वन, फाइंड आउट एटलीस्ट 4 नाउन्स। आपने 4 नाउन्स फाइंड आउट करने हैं। नाउन इज़ अ डिफ़िकल्ट वर्ड। नाउन मुश्किल होता है क्या थोड़ा? क्या होता है नाउन? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नाउन? नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग। नेमिंग वर्ड्स, नाउन आर द नेमिंग वर्ड्स। अब नेमिंग वर्ड्स तो बहुत सारे हैं इसमें भाई। देखिए, हम 4 नाउन करने, याद रखिएगा। वंस दे हैड फास्टन अ टेल टू द काइट। काइट पहला नाउन हो गया। क्या काइट को आप पेन कह सकते हैं, पेंसिल कह सकते हैं? नो, तो काइट भी तो नेम हुआ ना, इट्स अ कॉमन नाउन। टाइड अ लार्ज बॉल, बॉल twin to the front. One of the boys held it up in the air. Walked off होगा, walk, no. Unwinding, खोलते जाना, ये तो काम हुआ ना, वर्ब हुआ ना, तो ये तो नहीं है। तो 4 तो हमें एक पैराग्राफ से ही मिल गए नाउन्स, ठीक है? अब अगर आपको मैं कहूँ फाइंड आउट द 2 वर्ब्स, क्या आप फाइंड आउट कर सकते हैं इस पेज पे से 2 वर्ब्स? बहुत आसान है, देखिए। वर्ब्स आर द एक्शन वर्ड्स। एक्शन वर्ड्स क्या होते हैं? ब्लोइंग, उड़ रहा है। रनिंग, भाग रहा है। सेल, सोर्ड, एक्टेड, बिगेन, मेकिंग, क्रैश्ड। क्या ये आसान है? कॉल्ड, वॉश्ड। कितने सारे वर्ब्स हैं इसके अंदर, आपको दिख रहे हैं? अगर मैं आपको 2 वर्ब्स फाइंड आउट करने को देती तो क्या आपको मिल जाते? इट्स ईजी ना। नाउ यू मस्ट बी रेडी फॉर योर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस। मैं आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस इन्हीं पैराग्राफ्स में से दूंगी, फ्रॉम पेज नंबर 92 एंड 93। आपके पास पैराग्राफ भी आएगा और क्वेश्चंस भी आएंगे, एंड यू मस्ट फाइंड आउट द क्वेश्चंस फ्रॉम दैट पैराग्राफ, ठीक है? Thank you so much for your attention and for listening to your teacher carefully. Allah Hafiz, my dear students.